Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm with Dr. Nirmal Singh, the former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir belonging to the BJP, and Wahid Para, the head of the youth wing of the PDP, that's the People's Democratic Party. Welcome both of you to the print debates. We are discussing the Kashmir situation, the People's Alliance for Gupkar declaration that has just been formed, headed by Farooq Abdullah of the National Conference, basically a conclave of several opposition parties. My first question to you, Dr. Nirmal Singh, how do you look at the People's Alliance for Gupkar declaration, the PAGD? So far as this alliance is concerned, it's so alive, but on what lines they are doing it? They must do it within the framework of the Indian Constitution, and they should not raise any issue which is not acceptable to the nation. Parliament has passed there's a bill, and you know that because 370 is no more there, that has been passed by Indian Parliament, 35 is no more there. But what they are doing it, they are saying that as long as state flag is restored, we are not going to carry tricolor. It's not acceptable to the nation. They have every right to discuss within the framework of the Indian Constitution, but once they go out of it, and when we see that it indicates towards separatism, that shall not be accepted by the Indian nation. Right. Wahid, your straight question to you, that you have not accepted the tricolour. Mehbooba Mufti, your party leader, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, has said that she will not hold the tricolour until the erstwhile flag of the former state is also returned. I think, you're missing something very important in that press conference. Mehbooba ji started her press conference by saying that this country should be governed by the constitution, not by the manifesto of any political party. There is a perception, growing perception in India, not just in Kashmir, but across India, across minorities, especially Muslims, Dalits, and other minorities also, that this country is being governed through a pattern of majoritarianism, and also on the BJP's agenda, whether it is Babri Masjid issue, whether it's Kashmir issue, 370, 35A, everything is being seen that, they're trying to replace the federal constitution, whether CA protest. So what I'm saying is that you want to change the whole structure of the larger constitution. It's an unapplied constitution. The things are not, civil liberties have been crippled. The right to dissent is not available. You detained 3 former chief ministers with around, thousands of other people in this place for a year. It has been a year of silence, deception, and lies. My point to you is that what has the government of India achieved from last 1 year? Peace, integration, silence, development, विकास. एक चीज ये बताए कि हमने हासिल किया एब्रोगेशन के बाद. क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? We were very much part of India. We are the people, we are the mainstream who have given 7,000 cadres for upholding this flag, for upholding the constitution of India in Jammu and Kashmir. हमारे लोग मरे हैं, 7,000 लोग हमारे मेन स्ट्रीम के मरे हैं. बीजेपी के कोई लोग नहीं मरे हैं पूरे हिंदुस्तान में. राइट्स में इनके लोग मरते हैं, कांग्रेस के लोग नहीं मरे हैं. वही सवाल ये है कि आज की तारीख में महबूबा मुफ्ती, आपकी जो लीडर है, पीडीपी की लीडर, ये निर्मल जी ने ये सीधा जो इल्जाम लगाया है आप लोगों के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि आप अपना फ्लैग उठाइए ना उठाइए, वो अलग बात है, वो पार्टी की बात है, लेकिन जो नेशनल ट्राइकलर है, जो हिंदुस्तान का जो फ्लैग है, उसको आप क्यों नहीं जो है उठाने की बात कर रहे हैं? इसमें मैडम, इसमें तो अलगाववाद ही नहीं, ये देशद्रोह की बू आती है इस प्रकार की बात से. ये क्या मैसेज देना चाहती हैं? महबूबा जी के साथ हमने 3 साल काम किया है, मुफ्ती साहब से भी काम हमने किया है, कभी भी हमें ऐसा लगा नहीं कि इस प्रकार की बात होनी चाहिए. और जिस तरीके से ये जो नया अलायंस बना है, ये पहले भी एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है. शेख अब्दुल्ला जो थे वो भी इसी प्रकार की बात करते थे, लेकिन अल्टीमेटली 1975 में उनको एकॉर्ड में आना पड़ा, क्योंकि ही वाज द टावरिंग लीडर ऑफ कश्मीर. उसको भी उनको भी समझ आई बात, तो उन्होंने जो है यहाँ पर फिर से एकॉर्ड हुआ, जो इंदिरा शेख एकॉर्ड हुआ, उसमें से वो मेन स्ट्रीम में आए. नहीं,
महबूबा जी हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, ये जो सो कॉल्ड जो गुप्कार जो अलायंस किया है, इसके कारण क्या ये देश को अलगाववाद की तरफ, टू नेशन थ्योरी की तरफ लेके जा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में जब हुआ था 1940 के बाद। तो इस प्रकार की बात देश से स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग अभी शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर तरक्की हो, तामीर हो। और आज देखिए, जब इनको जेल में डाला गया, जब ये जेल में गए, क्योंकि यही लगता था जो एजेंसीज को, यहाँ की गवर्नमेंट को, कि ये इसी तरीके की बात करेंगे, तभी इनको जेल में डाला। नहीं, डॉक्टर निर्मल सिंह, निर्मल जी आप मुझे ये बताइए कि क्या आप कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बाकी सारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, यूसुफ तारिगामी, जो बहुत से लोगों को जेल में डाला था, अभी भी आज की तारीख में भी बहुत से लोग अभी भी जेल में हैं, तो क्या आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसीलिए भारत सरकार ने इनको जेल में डाला क्योंकि उनको ये डर था कि वो इस तरह की बातें करें? आप ये बातें ही करेंगे? नहीं, देखिए, बातें ही नहीं करेंगे। जिस तरीके से पहले आपको पता होगा पत्थरबाजी होती थी, लोग सड़कों पर आते थे और गोली चलती थी, लोग मारे जाते थे। जब इनको जेल में भेजा गया उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वही कश्मीर है, वही कश्मीरी है। तो जेल में क्यों भेजा? आप 4 तारीख करते हैं, नहीं 5 तारीख को पिछले साल अगस्त 5 को आर्टिकल 370 रद्द किया गया, 35A रद्द किया गया। ये एक पॉलिटिकल फैक्ट है। अब इसके बावजूद जो है इन लोगों को जेल में क्यों रखा गया इतने महीने? नहीं, देखिए, अभी क्या फारूक साहब बाहर आ गए, उमर अब्दुल्ला बाहर आ गए, अभी महबूबा जी बाहर आई हैं। लेकिन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जिस तरीके से जो आज फिर से इन्होंने वही भाषा बोलना शुरू की है, अगर इस तरीके की बात होगी तो, और जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पाकिस्तान को एक हौसला मिलेगा, पाकिस्तान को मौका मिलता है। और इस प्रकार की बातें जब करते हैं तो भारत विरोधी जो लोग हैं उसी का इंसास देते हैं। तो इस प्रकार की बात जो कि यहाँ पर खून खराबे की तरफ ले जाएगी, इस प्रकार की कब तक बात स्वीकार होगी? इसी कारण से जो है इनको जो है कोई भी जेल में डालने की बात नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। लेकिन कानून के दायरे में अगर कानून की व्यवस्था बनाए रखने में ऐसी जरूरत पड़ती है तो सरकार को करना पड़ता है। वहीद, आप जवाब दीजिए कि जो डॉक्टर निर्मल सिंह कह रहे हैं कि जेल में इसलिए डाला गया कि आप लोग जो है इस तरीके की बातें कर रहे थे और इसका डर था। They have killed the entire mainstream who, from last 1 year, they have been killing the entire mainstream, the India in Kashmir. What BJP is trying to do to justify its jingoism, अपनी politics को जो justify कर रहे हैं nationalism के नाम पे, आप मुझे बताइए कौन सा nationalism है? People who have been custodians of the constitutional space, people who have been custodians of the tricolor, अपने लोगों को अलग करके to turn your friends into foes, because there is an othering project. It is not limited to Kashmir. मैंने इसलिए large and mainstream की बात की. What's happening to Kashmir is also governing the rest of India. That how you are sending the message to the minorities across India, because we are a Muslim majority region. So there is a pattern. The BJP's fight is not to protect the Constitution of India. The biggest threat to the Constitution of India and to the civil liberties in this country is the BJP itself. This is not a war. This is not that we are not against India. They are the people who are fighting against the idea of India. इन लोगों ने जहां डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया, मेन स्ट्रीम को क्रिमिनलाइज किया, किस स्टेट में, 28 स्टेटों में आपने स्टेट को यूटी बनाते हुए देखा है? आप कहते हैं लोगों को प्रोवोकेशन तो होगा, बाज़ाब्ता होगा, क्योंकि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप किया, आपने एक स्टेट को इरेज किया है, आपने यहाँ के पॉलिटिशियंस को बंद किया, आपने मेन स्ट्रीम को अरेस्ट कर दिया। लोग नाराज नहीं होंगे, प्रोवोकेट नहीं होंगे, साइलेंट नहीं। अब आप कहेंगे यहाँ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। There is silence, there is suffocation in Kashmir. We have always seen cycles of silence and suffocation and cycles of violence in Kashmir. This is a controlled peace. This is a deceptive peace. This is not sustainable situation in Jammu and Kashmir. Everybody knows it. इतना फुटप्रिंट सिक्योरिटी का बड़ा है, हम लोग चैन से बात नहीं कर सकते। आज जब मैं आपसे बात करता हूँ 10 बार मैं सोच रहा हूँ कि मेरी कौन सी बात इनको बुरी लगे और कल को उठा के मुझे वापस अंदर डाले। हमारा जुर्म क्या है? 1 साल हमें अंदर रखा। What that we mobilized votes for the idea of India, for the democracy of India, for strengthening India in Kashmir. I'm saying to you कि हमारे 7,000 लोग मेन स्ट्रीम के मरे, कुर्बान हुए for upholding the constitutional values of this country. इन्हीं लोगों को आपने आज पुनिश किया और कहा आप तो एंटी नेशनल है, सेपरेटिस्ट है। कौन एंटी नेशनल है? कौन सेपरेटिस्ट है? तो ये बताइए, this whole the point I'm trying to say that people who are saying justifying everything in the name of nationalism,
are doing the biggest disservice to this country by punishing the people who have stood for this country and who stood in the worst times. There was a time in 96 जब कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा था और फारूक साहब को पांव पकड़ के बोला आप इलेक्शन लड़िए. Mahbooba Ji's father has been Home Minister of India, the only Muslim Home Minister of India. She has been a female, first Chief Minister female. She made alliance with BJP. They had an agenda of alliance, and today you say the same people are being turned into anti-nationals. But ये बताइए डॉक्टर, which is being created. We are being pushed repeatedly against. Yeah, Wahid, I got your point. Wahid, I got your point. डॉक्टर निर्मल, ये बताइए, जो सवाल ये है कि who is a separatist? आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि PDP is separatist, National Conference is separatist, सजाद लोन की जो पार्टी है separatist है, CPM यूसुफ तारिगामी जो है, क्या वो separatist है? आप ये बताइए. देखिए, जब तिरंगे को नहीं उठाने की बात करेंगे, जब तिरंगे को कहेंगे कि अगर जो है कोई हाथ लगाया तो हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे, तो ये सेपरेटिज्म की भी बू इसमें आती है और इसमें जो है वायलेंस को इनकरेज करने की भी बात इसमें. नहीं, आपको लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सेपरेटिस्ट हैं? नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात नहीं कर रहा हूं मैं सोच की बात कर रहा हूं. मैं सोच की बात कर रहा हूं. वो जो कह रहे हैं कि चाइना को जो है से गवर्न होना चाहेंगे, ये सेपरेटिज्म नहीं है क्या? ये भारतीय संविधान के दायरे में बात हो रही है. जब जो इस प्रकार की बात है कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, हम नहीं उठाएंगे तिरंगा, ये लगाव बात ठीक है, आप अपनी बात रखिए, उसको कोई मना नहीं कर रहा. लेकिन जब इस प्रकार की अगर जो नेशनल जो सिंबल्स हैं, when you are questioning the national symbol, when you are questioning the Indian Constitution, when you are questioning the parliament, ये कह रहे हैं, वहीद साहब कह रहे हैं कि देखिए आपने बीजेपी का एजेंडा, पार्लियामेंट क्या बीजेपी है क्या? नहीं, तो आप ये बताइए डॉक्टर निर्मल, बीजेपी मेजॉरिटी देयर सर, एंड यू हैव लिसन टू द डिबेट इन पार्लियामेंट. खुल के बात हुई है और ये कहते हैं कंसर्न नहीं किया गया. किसको कंसर्न नहीं किया? पार्लियामेंट से कोई ज्यादा कोई पंचायत हो सकती है कि भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में? एवरीथिंग वाज डिबेटेड देयर. Dr. Farooq Abdullah was there, other representatives. Dr. Farooq Abdullah was, Dr. Nirmal ji, Dr. Farooq Abdullah was not there. He was inside. Yes, agree. But आपको लगता है, नहीं, मैं आपसे other representatives were there. नहीं, मैं आपसे कुछ और. Dr. Farooq Abdullah, he decided to stay away. No, he was in jail. He was in jail on the floor of the house. He decided to stay away. No, he was not. He was in jail. One second, Wahid. I'm just answering. He did not decide to stay away. He was in jail. तो वो तो आ नहीं सकते थे ना पार्लियामेंट के अंदर. Madam, you would have listened to the statement of Honorable Home Minister that we have not stopped Farooq Abdullah Sahab to come to the Parliament. He's inside with his own will. That's a statement given by the Home Minister on in the other floor of the House. नहीं, आप कह रहे हैं कि he was inside the jail of his own will? No, you must remember the statement given by Home Minister. Yeah. From PDP, from National Conference, from BJP, from Jammu people, from Ladakh, they were there. And you would have listened to the debate. Everything was discussed threadbare. And when the bill was passed, it was passed by the majority. Okay. So, do you think that it's against Constitution? Mm-hmm. It's not against the Constitution. So today, what will you say about the Gupkar alliance? Are you saying that only PDP is separatist, or what about the other parties? If they preach the separatist agenda, if they say that we won't carry tricolor unless the state flag is restored, which they are dreaming, and which is not going to be possible, so they are preaching separatism. I'm not questioning their past history only. But Dr. Farooq Abdullah has said... We were with there's Umar Abdullah, he was in the Union Home Ministry with Atalji. But if they preach that agenda, definitely question mark shall be on their role. I'm saying this. So Dr. Farooq Abdullah has said that the Gupkar alliance is not against the constitution, not against the country. It is just against the जब वो कहते हैं, when he says that
we would like to be ruled by China. What do you say on this? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। अभी आप बताइए वहीद, ऐसा कहा गया है कि that you would like to be ruled by China. It was in the print media, it was in the electronic media, it was everywhere. हाँ, वहीद आप इसका जवाब दीजिए। They are on the TV channels on this statement. वहीद, please respond to this. Gigi, I think repeatedly, there are statements which have been manipulated and twisted in different ways. What he said कि काफी ज्यादा anger है और इतना गुस्सा है लोगों में कि उनको मतलब there's a resentment after 5th of August. So he was articulating that resentment. I don't think he said that. What he was trying to mean that. But my point is, again, let's come to the basic point. Today Jammu and Kashmir is at this position. हमने पहले भी देखा है कि जम्मू कश्मीर का मसला जब भी बात होती थी पूरे मुल्क में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी थे या वाजपेयी जी थे या उससे पहले कांग्रेस के थे, हर वक्त लोगों ने कश्मीर में sky was offered to the people कि चलो okay, let's do this thing and many things. Vajpayee went to huge an extent, made a huge reconciliatory move on Jammu and Kashmir. Today you have a situation where the entire Kashmir debate and discussion is revolving around a constitutional debate. सारा मुद्दा constitution पे है, सारा मुद्दा Indian Parliament पे है. Whatever Kashmir is seeking today, it revolves around the Parliament of India and within the Constitution of India. Nowhere the demands of Gufkar parties or the all parties in Kashmir today are anti-constitutional. We are seeking constitutional protection, constitutional safety and constitutional guarantees. How is it that कि आपको पाकिस्तान के झंडे से प्रॉब्लम नहीं, आईएसएस के झंडे से प्रॉब्लम नहीं, स्टेट फ्लैग से आपको प्रॉब्लम है, और जब हम जो लोग 4-5 जमा हो जाते हैं जो यहाँ पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज who have governed the interest of India for 70 years, you see it as a threat today. Why is it that कि बॉम्बे में महाराष्ट्र में अगर यूनिटी होती है उसको महागठबंधन कहा जाता है, पूरे कंट्री में महागठबंधन हो उसको सेलिब्रेट किया जाता है. If BJP comes together, it's seen as a national defense alliance. If Kashmiris come together, it is seen as a threat to the idea of India. नहीं, वही सब अलायंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है कि अगर सेपरेटिस्ट एजेंडा, प्रो पाकिस्तान एजेंडा या ऐसा एजेंडा जो प्रीच किया जाएगा जिससे कि हमारे एंटी नेशनल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, वो देश स्वीकार नहीं करेगा. सर बिल्कुल, डेमोक्रेसी में पूरा स्कोप है, लेकिन ऐसी बात करना जिससे कि वायलेंस हो, टेररिज्म को बढ़ावा मिले, अलगाववाद को बढ़ावा मिले, वो बात अभी सरकार अब जो है देश स्वीकार नहीं करेगा. इवन कश्मीर भी नहीं करेगा. आपने देखा होगा कल कश्मीरी का, हमने देखा कि अपने कपड़े फाड़ रहा है, कहता है यहाँ बसता है, मेरे दिल में बसता है. एक जो वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे लोग भी कश्मीर में है. आप कहते हैं बीजेपी ने नहीं है. अभी जो वसीम वारी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां शहीद हुआ है, हमारे कितने लोग शहीद हो गए, जम्मू के लोग शहीद हुए. मेरे सगे साला विजय सिंह जो थे वो शहीद हुए डोडा में. ऐसा नहीं है. जम्मू कश्मीर इज नॉट कश्मीर ओनली, इट्स जम्मू आल्सो. हम भी हैं, हमने भी कुर्बानियां की हैं. नेशनल में मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है पे बाकी लोगों ने नहीं दी, आपकी पार्टी के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उन कुर्बानियों को जो है तभी उनकी जो इज्जत होगी कि अगर हम उस बात पर चले जिससे पूरा देश एकजुट होके एक तरफ जाए. अभी देखे जेल में पानी बह चुका है, चुनाव में बह चुका है, वो वापस नहीं आने वाला. अभी है आगे की सोचे कैसे जम्मू कश्मीर को तरक्की और तामीर के ऊपर और शांति की तरफ लेके जाएं. यह स्पष्ट है क्योंकि ये भारत जो है 2021 का भारत है, वो 1947 का, जो उसके बाद का भारत नहीं है. 75 पहले का. शेख अब्दुल्ला ने भी बात समझी थी 75 में. वो भी राजनीति की बात करते थे, वेबसाइट फ्रंट की बात करते थे, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली जाना. तो इसलिए आज की जो लीडरशिप है, कश्मीर जो की लीडरशिप है, उसको ये समझना पड़ेगा. हम जम्मू के लोग समझ रहे हैं. आइए, जैसे 3 साल हमने सरकार चलाई थी, जिस तरीके से हमने कोशिश की, मुफ्ती साहब का वो विजन था, सरकार चली. अगर इस तरीके से अगर जो है वो ठीक चलता रहता, अगर गलतियां नहीं होती, तो शायद आज माहौल दूसरा होता यहाँ. तो सर ये जो वहीद ये बताइए, ये जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार जो 2.5-3 साल चली थी, अब इसके बाद आर्टिकल 370 रद्द किया गया. अब आगे इसको ये क्या स्टेप्स ले सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपकी पार्टी या गुपकार अलायंस? आपको क्या लगता है कि पोल्स होंगे, कंटेस्ट करेगी गुपकार अलायंस? तो क्या आगे क्या लगता है? देखिए वहीद आप जवाब दीजिए जी. अच्छा ओके. देखिए अभी तो बेसिकली यहाँ पर देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ पूरा कोई पॉलिटिकल स्पेस थी नहीं. 5 अगस्त के बाद यहाँ डिटेंशन और साइलेंस का इतनी घुटन थी लोगों में कि कोई पॉलिटिकल बात करने से भी डर लगता था.
उसके बाद रिप्लेसमेंट लग रहा था कि हर चीज को रिप्लेस किया जा रहा है। नया कश्मीर के नाम पर आप पूरे मुल्क में थोड़ा नया भारत भी तो बन रहा है, लेकिन आप थोड़ी हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को रिमूव कर रहे हैं, वहां की पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं। बीजेपी इज अ ओल्ड पार्टी, कांग्रेस इज अ ओल्ड पार्टी, यू कैन रिप्लेस द रूट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर नए कश्मीर के नाम पर पार्टीज को निकालने की कोशिश करें, नई पार्टीज को बनाने की कोशिश करें, नए लोगों को लाने की कोशिश करें, एट द कॉस्ट ऑफ our own, old traditional conventional politics, whatever we have. So that is, we inherit this politics. We will want to do our space in our नया कश्मीर यहाँ के लोग बनाएंगे, नए कश्मीर के लोग बनाएंगे। ये नहीं कि दिल्ली में फैसला होगा कि नया कश्मीर कैसे चलेगा, कैसे बनेगा। दूसरी बात हमारी ये थी कि there was no space। उस स्पेस की, उस घुटन की जो मतलब आउटकम है वो ये आपको गुफ्कार डिक्लेरेशन की यूनिटी है। This declaration came, it's a very constitutional issue, this is a constitutional unity, और इस यूनिटी में हर बंदा ये कहता है कि हमारे राइट्स जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको फाइट करेंगे डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली। तो कोशिश ये है कि देखिए पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इलेक्शंस, कि अभी ये बीडीसी के इलेक्शंस होने वाले हैं, पंचायत के होने वाले हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, लेकिन असेंबली इलेक्शन उन्होंने डिलिबरेटली पीछे किए। स्टेट में भी, आज यूनियन टेरिटरी में भी, द होल पॉइंट वाज टू डिले द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ to the people of Jammu and Kashmir. The point I am saying is कि ये जो पॉलिटिक्स जो अभी शुरू हुई है ये खुद में ही एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ लोगों में एक चर्चा है, वापस 1 साल के बाद पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हुआ है। उसके बाद चाहे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, दैट इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोग्राम। वो अब अलायंस का जो नेक्स्ट मूव होगा, वो डिस्कशंस होंगे, काम होंगे, वो तो सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये बताइए जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डॉक्टर फारूक को जो बुलाया है, इसका पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट हुआ है कश्मीर वैली में? आई थिंक इट्स सीन एज अ विच हंट कंप्लीटली। आप जैसे पूरे वेस्ट ऑफ कंट्री में हमने देखा कि विच हंट हुआ है काफी लोगों के साथ, यहाँ पर भी फारूक साहब को 15 साल पुराना आप केस खोलते हो एट अ टाइमिंग इज seen as very political and motivated, और आपको लगता है कि क्योंकि यूनिटी हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, या राइट्स की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज की बात हो रही है, तो आपने ईडी को लगा दिया। तो उन चीजों से तो ये चीजें ज्यादा स्ट्रेंथन और सीमेंट हो जाएंगी, कमजोर नहीं होंगे यहाँ पे लोग उससे। बट व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज अ क्राइसिस इन कश्मीर, बट दिस क्राइसिस कैन बी seen into an opportunity as well। बीजेपी इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बड़े चैलेंज लेते हैं, चाइना से लड़ते हैं, पाकिस्तान से लड़ते हैं। Naga में they have done a Naga peace accord. They are renegotiating the whole social contract with the Naga people. Kartarpur में when India Pakistan इतनी hostile relations, they went कश्मीर के साथ होना चाहिए। No, what I'm saying is कि करतारपुर में when India and Pakistan had hostile relations, they went and opened Kartarpur corridor. उसके बाद this country has a position of dialogue with Taliban in Afghanistan. आप अपने लोगों से जो लड़ रहे हैं, सिर्फ ये कि बातचीत से कश्मीरियों से बातचीत नहीं होगी, बाकी हर जगह हम बातचीत करेंगे। Dialogue is a weapon in this democracy. The biggest weapon of Indian democracy has been dialogue and reconciliation. That's a good point. Vajpayee was a person who addressed 50,000 people in Sher-e Kashmir Stadium. और उन्होंने क्या कहा कश्मीरियों को? उन्होंने कहा ये आपका बाग है, आप इसको संभालिए। आज हमको ही अप्रूव किया जाता है। आज यहाँ पे कंसर्न्स है डेमोग्राफी चेंज के, आज यहाँ पे कंसर्न्स है ये जो मतलब हमें अदरिंग की जा रही है, कि दैट यू आर एनिमीज, यू आर एंटी नेशनल्स। वी आर नॉट, हम तो यहाँ जो एंटी नेशनल वो खुल के उसने बोला है। They're not scared to tell anybody. They openly wear it on their sleeves. The people you are saying today defining anti-nationals in this country are the people who have given life for this constitution. फारूक अब्दुल्ला साहब को, महबूबा जी को आप कह रहे हो, मुफ्ती साहब की कुर्बानियों को, और दूसरा चीज, it is not limited to this character assassination. डॉक्टर निर्मल, आप बताइए, जो डायलॉग की जो बात हो रही है, अटल जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी कश्मीर के अंदर आकर उन्होंने कहा कि स्काई इज द लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात उन्होंने एक्चुअली नहीं कही थी, उन्होंने इंसानियत की बात कही थी कि हम इंसानियत के दायरे में बात करते हैं। तो आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि इंसानियत के दायरे में बात हो सकती है? जी देखिए, ऐसा है कि उन्होंने ये स्काई इज द लिमिट शायद उन्होंने कहा था, दूसरे प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था, पीएम ने, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था इंसानियत के दायरे में बात कर सकते हैं। तो हमारा जो भारतीय जो संविधान है वो इंसानियत की बात करता है, और जो भी बात होगी वो उसके दायरे में होनी चाहिए, और डायलॉग इज द ओनली वे आउट। हम यही तो हम कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट ने जो कुछ हुआ है 5 अगस्त को, देखिए वो जल्दी होना चाहिए था। हम तो शुरू से कह रहे थे, जब 1980 में और 1950 में जब भारतीय जनसंघ बना, तब से हमारा ये एजेंडे पर था। यहाँ तक के जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद मूवमेंट में जो ये था, एक विधान एक निशान, लेकिन जो कश्मीर का जो एजेंडा था, इन पार्टीज का एजेंडा था, वो चला।
72 साल हमें लगे, तो उसके लिए डिबेट किया, उसके लिए हमने स्ट्रगल किया, और आज जो है उस पर जो है जो भी है 370 पूरी नहीं गई है, 370 है, लेकिन उसके जो सब क्लास है वो गए हैं। तो इसलिए वो पार्लियामेंट ने किया है और भारतीय संविधान के दायरे में किया है। तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल डायलॉग चाहिए, आप अपनी बात भारतीय संविधान के सामने लाके बिल्कुल आगे जो है रखना चाहिए, वो सब सुनने के लिए। आपको पता हो एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ तक गिलानी साहब के बाहर घर में भी गया था, लेकिन उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। डॉक्टर निर्मल, ये बताइए कि क्या बीजेपी को लगता है कि ये जो गुपकार अलायंस, ये बाकी ऑपोजिशन पार्टी साथ आई हैं, तो क्या एक तरफ से ये बीजेपी को चैलेंज कर रही हैं? बिकॉज सेपरेटली बीजेपी को चैलेंज नहीं है, कल को हम जीतते हारते हैं वो अपने अपने आधार पर होगा, ये जीते हारते इनके आधार पर होगा। लेकिन सिर्फ है कि ये अलगाववादी एजेंडे को ना लेके चाहे, तिरंगे को क्वेश्चन के उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, भारतीय संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगाए, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगाए, उसको मेजॉरिटीज्म की बात दायरे में ना रखें। वो भारत के लोगों ने उसको चुना है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए आगे बातचीत करने की बात रखें, तरक्की और तामीर की बात करें, आम लोगों की बात करें, उग्रवाद के खिलाफ भी बोले, अलगाववाद के खिलाफ बोले, पाकिस्तान जो कर रहा है उसके खिलाफ बोले, चाइना के खिलाफ बोले, चाइना का साथ देने की बात ना करें। तो वो करेंगे तो वेलकम है, अलायंस करना तो हक है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है एनडीए है, तो ये क्यों नहीं गुपकार अलायंस होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर निर्मल, एक क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने का तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हक है। Wahid, you have the last word about the BJP and the Gupkar alliance. Well, I think it's a huge opportunity. I'm again putting this point. सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज के वक्त में 70 साल में हिंदुस्तान की जमहूरियत में जो कश्मीर के साथ वादे हुए, गलतियां हुई, ठीक करने का एक बहुत बड़ा मौका है। You have a strong government, you have a strong will, you have a strong prime minister. Let him use this crisis as an opportunity in Kashmir. The people are united today. The leaders are united. और mainstream के लोग हैं, constitutional discussion है. Whatever we are seeking is part of constitution. Whatever we are seeking to restore is also very much part of Indian constitution. Within the ambit of the Parliament of India, there is nothing anti-India, anti-constitutional in this whole debate. But for the first time, you as a country has an opportunity to reach out to the people of Jammu and Kashmir, assure them, secure them, and address their anxieties. Okay. There is a huge opportunity right now available for the Prime Minister himself. Nirmal ji ने खुद कहा जब ये डिप्टी सीएम थे, उस वक्त ऑल पार्टी डेलीगेशन आई, गिलानी साहब के घर पे भी गई, तब they were no takers. But today there are takers in Kashmir for the same government, for the same parliament, for the same constitution of India. So why don't you actually use this time to your advantage? What do you mean by takers? Yes. Takers. People are willing to listen to the government of India to address this problem in a constitutional parameter today. तो आज आप इसलिए हमें पिटाई कर रहे हैं या लड़ रहे हैं या कश्मीरियों को डंडा दे रहे हैं या जेल भर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी लड़ाई पाकिस्तान से है, आपकी लड़ाई पड़ोसी मुल्कों से है, तो उसका गुस्सा आप हम पे निकालेंगे और हमें बंद करेंगे just because we upholded the democratic values and the ideals of this country. But explain to me, what do you mean by takers? Are you saying that the PDP or the Gupkar alliance is willing to talk to the BJP? What do you mean, and what do you mean by that? We are willing for a constitutional, restoration of Jammu and Kashmir. And we are very much, whatever our demands are today, the Kashmiris' demands are very much in the competence of Indian Parliament and the Constitution of India. There is nothing anti-constitutional, and there is weight today in Kashmir that what the government of India is going to offer to people of Jammu and Kashmir, how they are going to secure our interests, address our fears. There is a huge concern of demographic fear which is being created here. Prime Minister Modi should take a leaf out of Prime Minister Atal Bihari's book and offer dialogue to the people. Definitely, why not? I think we should move ahead, and there's a huge opportunity, and you should offer a constitutional solution to the people of Jammu and Kashmir. Right. On this note, Dr. Nirmal Singh, Wahid Para, thank you so much for joining the print debates. आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद. और please the print channel, हमारे YouTube channel को देखते रहिए. And thank you so much for your time. Thank you, ma'am.